जाने कौन है हिंडनबर्ग कंपनी के असली मालिक और इनके काम से क्यों डरते हैं दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति। AIN न्यूज़ बता दे, हिंडनबर्ग बस एक रिपोर्ट जारी करता है और दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल गौतम अडानी की सभी कंपनियों के शेयर धड़ाम से धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाते हैं। आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया है कि रातों रात अडानी के शेयर अर्श से फर्श पर एक झटके में आ गए हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें अडानी ग्रुप पर उसने आरोप लगाया है कि इस ग्रुप की कंपनियों ने मार्केट में काफी ज्यादा हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी भी की है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बिल्कुल निराधार बताया है। आइए जानते कि नाथन एंडरसन ने कैसे इस कंपनी की शुरुआत की और कंपनी बनाने से पहले वो क्या करते थे। जाने नाथन एंडरसन, हिंडनबर्ग का मालिक। नाथन एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ही ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के बाद वे अपने लिए नौकरी की तलाश में थे। इसी बीच उन्होंने एक डेटा रिसर्च कंपनी में काम करने का मौका भी मिला। यहाँ उन्हें पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम करना होता था। जाने साल 2017 में बना ली अपनी खुद की कंपनी। नौकरी करते वक्त उन्हें डेटा और शेयर मार्केट की तमाम बारीकियों को अच्छे से समझ लिया और उन्होंने समझ लिया कि शेयर मार्केट अमीरों का सबसे बड़ा अड्डा है। उनके मुताबिक शेयर मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों को कभी पता ही नहीं होगा। इसके चलते उन्हें एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी बनाने का आइडिया आया और उन्होंने 2017 में एंडरसन हिंडनबर्ग नाम से अपनी कंपनी बना ली। जाने इन सेक्टर्स पर करती हैं ये रिसर्च। ये कंपनियां इक्विटी, क्रेडिट, शेयर मार्केट और डेरिवेटिव्स पर काफ़ी रिसर्च करती है। रिसर्च के जरिए कंपनी समय समय पर पता लगाती है कि शेयर मार्केट में क्या गलत चल रहा है, कहाँ पैसों की हेराफेरी हो रही है, कोई कंपनी शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। जाने क्या सच में पहले की रिपोर्ट का हुआ था असर। कंपनी रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट जनता के बीच पब्लिश करती है और कई बार इस कंपनी की रिपोर्ट से दुनिया भर के शेयर मार्केट में काफ़ी असर हुआ है। इसी हिंडनबर्ग ने अब अडानी ग्रुप के लिए भी एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. We will continue to focus on a long-term value creation and growth will be managed by our internal accruals.
Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy. We have a strong focus on ESG, and every business of ours will continue to create value in a responsible way. The strongest validation of our governance principles comes from several international partnerships we have built across our different entities. I take this opportunity to thank our investment bankers, institutional investors, and shareholders from within and outside the country for giving unflinching support to the FPO. Despite the volatility in the stock over the last week, your faith and belief in the company, its business, and its management has been extremely reassuring and humbling for all of us. We are very confident that we will continue to get support in the future also. Thank you again for your trust in us. Jai Hind. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।